बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं मिस राबिया आपको यकसा कौमी निसाब के मुताबिक जमात अव्वल त जमात पंजम तक तमाम मज़ामीन के वीडियो लेक्चर्स की सीरीज में खुश आमदीद कहती हूँ। इस वीडियो लेक्चर में आप बुक 5 चैप्टर 7 इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म की सॉल्व्ड एक्सरसाइज देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। Question 1. Take the correct answer. Number 1. The flow of current in an electric circuit is controlled by A. Bulb, B. Copper wire, C. Switch, D. Rubber. Correct option is C. Switch. Number 2. Current can easily pass through A. Steel paper clip, B. Glass strip, C. Plastic comb, D. Wooden spoon. Correct option is A. Steel paper clip. Number 3. How many poles are there on a ring-shaped magnet? कि रिंग शेप मैग्नेट में कितने पोल्स होते हैं? A. 1, B. 2, C. 3, D. 4. Correct option is B. 2. Number 4. A freely suspended bar magnet always stays along A. East-west direction, B. North-south direction, C. Any direction, D. Keeps oscillating. Correct option is B. North-south direction. Number 4. Which one is a true statement? A. North pole attracts North pole, B. North pole repels North pole, C. South pole repels North pole, D. South pole attracts South pole. Correct option is B. North pole repels North pole. Now question 2. Write short answers. Why does a bulb light up in a closed circuit? कि बंद सर्किट में बल्ब क्यों रोशन होता है? Answer is when circuit becomes closed or complete due to which current starts flowing through it, due to which the bulb is light up. सर्किट जब बंद होता है या मुकम्मल होता है तो सर्किट में से करंट गुजरना शुरू हो जाता है जिससे बल्ब रोशन हो जाता है। Number 2. You are given a bulb. What other components are required to light it up? कि आपको एक बल्ब दिया गया है, इसको रोशन करने के लिए दूसरी कौन सी चीज दरकार होगी, इसका नाम लिखें। Answer is we have given a bulb. Other components are required to light it up. That bulb holder, metal wire, cell or battery and a switch. बल्ब को रोशन करने के लिए बल्ब के अलावा दर्ज झेल अज्जा दरकार हैं। बल्ब होल्डर, धाती तारे, बैटरी, सेल और एक स्विच। Number 3. Why does an iron nail stuck to a magnet attracts another nail? कि मैग्नेट के साथ चिमटा हुआ लोहे का कील किसी दूसरे कील को क्यों कशिश कर लेता है, खींच लेता है? Answer is an iron nail stuck to a magnet attracts another nail because the first nail attracts itself to a powerful magnet and becomes a magnet itself. कि मैग्नेट के साथ चिमटा हुआ लोहे का कील किसी दूसरे कील को इस वजह से अपनी तरफ खींचता है कि पहला कील ताकतवर मैग्नेट से जुड़े होने की वजह से खुद एक मैग्नेट बन जाता है। Next question is how are directions known using a magnet compass? कि मैग्नेट कंपास से सीमतें कैसे मालूम की जाती हैं? Answer is to perform an experiment to know the use of a magnet compass. Number 1. To know directions at any place, put a magnet compass on a table or ground. Its needle will stay along north-south direction. Number 2. Ensure that
In short, there is no other magnet or an object made of iron near it. Number 3. Rotate the compass slowly until the north pole of the needle is aligned with the north direction of the compass. In this condition, the magnet compass will indicate correctly the 4 direction marked on it. उर्दू में भी समझा देती हूँ कि मैग्नेट कंपस से सिमतें दर्ज झेल तजर्बे से मालूम की जा सकती हैं। किसी भी जगह की सिमत मालूम करने के लिए मैग्नेट कंपस को मेज या जमीन पर रखें और इसकी सुई शुमालन जनूबन करें। यकीन कर लें कि कंपस के करीब कोई दूसरा मकनातीस या लोहे की कोई चीज मौजूद नहीं है। कंपस को आहिस्ता आहिस्ता घुमाएं हत्ता कि सुई का शुमाली सिरा, जो शुमाली सर है, सिरा या निशान है, वो नॉर्थ के एंड सामने आ जाए। ठीक है ना, एंड के सामने आ जाए। फिर इस हालत में मैग्नेट कंपस पर दर्ज झेल सिमतें बिल्कुल दुरुस्त निशानदेही करेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अ बैलून इज चार्ज्ड बाय रबिंग इट विद द वूलन क्लॉथ। Why does it stick to a wall when brought near to it? कि ऊनी कपड़े से एक चार्ज किया हुआ गुब्बारा दीवार के करीब लाएं तो वो दीवार से क्यों चिपक जाता है? आंसर इज, rubbing a balloon with a woolen cloth gives a negative charge to the balloon. When the charged balloon is brought, we stick to the wall due to the positive charge on the wall. कि गुब्बारे को ऊनी कपड़े से रगड़ने पर गुब्बारे पर मनफी चार्ज आ जाता है। जब इस चार्ज शुदा गुब्बारे को दीवार के करीब लाएंगे तो दीवार पर मौजूद मस्बत चार्ज की वजह से गुब्बारा दीवार से चिपक जाएगा। पार्ट 3 कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चंस। नंबर 1, 2 ring magnets are shown on a wooden stand. The upper magnet rises up and it's suspended in air as shown in the figure. A. Why does the upper magnet float in the air? B. Label the N and S pole of the magnet. कि ऊपर वाला मैग्नेट हवा में क्यों मुअल्लक है, ठीक है, और मैग्नेट के नॉर्थ और साउथ पोल्स को बयान करें। अब पार्ट ए को पहले हम देख लेते हैं। Answer is, the same poles of both ring magnets push each other away because of repulsive force. Due to repulsion, the upper magnet rises up and it's suspended in air. Okay? कि दोनों रिंग मैग्नेट एक जैसे पोल्स एक दूसरे को दफा की फोर्स से परे धकेलते हैं। दफा की फोर्स है जो एक दूसरे के ऑपोजिट करती है। तो इस फोर्स से यानी कि दफा की फोर्स की वजह से ऊपर वाला मैग्नेट हवा में मुअल्लक है। और जो बी था, लेबल दी नॉर्थ एंड एस पोल ऑफ द मैग्नेट में देखें, इसमें ये लेबल कर दिया गया है। क्वेश्चन 2, देयर इज अ बार मैग्नेट विदाउट एन इंडिकेशन, हाउ विल यू आइडेंटिफाई इट्स साउथ पोल। कि बार मैग्नेट पर कोई निशान नहीं लगा हुआ, आप इसके साथ साउथ पोल की शिनाख्त कैसे करेंगे? आंसर इज, a freely suspended magnet always points in the north-south direction. The end of bar magnet that points towards north is called its north pole and the end pointing towards south is called its south pole. के आज़ादाना लटकाया हुआ जो मकनतीस है हमेशा शुमालन जनूबन ठहरता है। शुमाल की तरफ मैग्नेट का सिरा नॉर्थ पोल और जनूब की तरफ का सिरा जो है वो साउथ पोल कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, देयर आर 3 सिमिलर मेटल बार्स, वन इज अ मैग्नेट, द सेकंड इज दैट ऑफ आयरन एंड थर्ड बार इज ऑफ एल्यूमिनियम। हाउ वुड यू आइडेंटिफाई ईच बार। कि 3 एक जैसी सलाखें हैं, इनमें से एक मैग्नेट, दूसरी लोहे की है और तीसरी एल्यूमिनियम की है, तो आप कैसे मालूम करेंगे कौन सी सलाख क्या है? आंसर इज, वी विल हैंग द 3 बार्स alternately with the thread that will stay
north south, and despite repeated shaking, it will remain north south. The rod is magnet. Now take the second rod and attach the first rod with which is the magnet. If the magnet pulls or attract the second rod towards it, then that rod will be iron. While the third rod, that magnet will not attract, that rod will be aluminium. कि हम तीनों सुलाखों को बारी बारी एक धागे से बांधकर आज़ादाना लटकाएंगे. जो सुलाख शुमालन जनूबन आज़ादाना ठहरेगी वो बार बार हिलाने के बावजूद शुमालन जनूबन ही रहेगी. वो सुलाख क्या है? मैग्नेट है. आप दूसरी सुलाख ले लें और उससे पहले वाली सुलाख जो मैग्नेट है इससे मिस करें. ठीक है, अगर मैग्नेट दूसरी सुलाख को अपनी तरफ खींच लेता है तो दूसरी वाली सुलाख किसकी है? लोहे की होगी. जबकि तीसरी सुलाख जिसे मैग्नेट कशिश नहीं करेगा, अपनी तरफ नहीं खींचेगा, वो कौन सी सुलाख होगी? एल्यूमिनियम की होगी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ प्लास्टिक comb charged with a woolen cloth is touched with an iron key. What do you observe? Give an example of similar phenomenon in daily life. अंधेरे कमरे में ऊनी कपड़े से चार्ज किए हुए कंघे को आहिस्ता से लोहे की चाबी से छुएं. क्या आप मुशाहिदा करेंगे कि रोजमर्रा जिंदगी में इससे मुशाबे मंजर की निशानदेही करें? आंसर इज a plastic comb charged with a woolen cloth with touch with an iron key. So a small spark will produce a light. Okay? कि ऊनी कपड़े से चार्ज किए हुए कंघे को जब अंधेरे में आहिस्ता से लोहे की चाबी से छुएंगे तो मामूली सी स्पार्क यानी हल्की सी रोशनी पैदा होगी. मोर एग्जांपल्स इसकी हैं. When we wear silk clothes, the clothes get charged and silk and stick. ठीक है, चार्ज होंगे and stick to the body due to friction. मजीद मिसाल में देखें कि जब हम रेशमी कपड़े पहनते हैं तो कपड़े जिस्म से रगड़ की वजह से चार्ज हो जाते हैं और जिस्म से चिपक जाते हैं. Sometimes when we touch a metal, we get an electric shock. This is also due to presence of charge. बाज़ औक़ात हम किसी मेटल को हाथ लगाते हैं तो हमें बिजली की तरह का झटका लगता है. ये भी चार्ज की मौजूदगी की वजह से होता है. इन्वेस्टिगेट. You are provided a bar magnet, paper pins, glass, plastic, aluminium, and steel plates, and a wooden board. Investigate which material allows magnetic attraction to pass through it. जी, बार मैग्नेट, पेपर पिन, शीशे, प्लास्टिक, एल्यूमिनियम, स्टील की प्लेटें, लकड़ी की तख्ती की मदद से तहकीक करें कि किन चीज़ों में से मैग्नेटिक कशिश गुजर सकती है. Answer is bar magnetic, paper pins and steel plates allows magnetic attraction to pass through it. किस में से? पेपर पिन में से, स्टील की प्लेट में से और बार मैग्नेट में से. ठीक है ना, इनमें से जो है मैग्नेटिक कशिश गुजर सकती है. Now project. You are provided with a water tub, cardboard, magnet and cellotape. Make a boat using the materials provided to you whose forward or backward motion can be controlled by another magnet. पानी का टब, कार्डबोर्ड, मैग्नेटिक ठीक है की मदद से एक ऐसी कश्ती बनाएं जिसके आगे पीछे हरकत को एक दूसरे मैग्नेट से कंट्रोल किया जा सके. तो ये आपका प्रैक्टिकल वर्क है, आपने इसको करना है. नेक्स्ट इज You are given a cardboard, torch bulb, electric cell, screws and connecting wires. Design and make a test board for 4 science quizzes. To that the bulb lights up on the correct answer only. जी, कार्डबोर्ड, टॉर्च बल्ब, इलेक्ट्रिक सेल, स्क्रूज और तारों की मदद से 4 साइंस क्विजेज का आजमाइशी बोर्ड डिज़ाइन करें. ठीक है ना, टेस्ट बोर्ड डिज़ाइन करें जो सिर्फ सही जवाब पर बल्ब जिस पे रोशन हो. सो दिस इज़ योर प्रैक्टिकल वर्क, यू हैव टू डू इट.
ये थी हमारी आज की एक्सरसाइज चैप्टर 7 की। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस में हम नेक्स्ट चैप्टर्स को करेंगे, उनकी ट्रांसलेशन करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे और उनकी एक्सरसाइजेस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। वीडियो को आखिर तक देखने का बहुत शुक्रिया। वीडियो को लाइक करें और यकसा कौमी निसाब के मुताबिक तमाम मज़ामीन के वीडियो लेक्चर्स देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।